So the topic is refraction of light. I will start with a question. Who can tell me what is the major difference between reflection and refraction? Major difference between reflection and refraction. Because we have studied reflection, right? Yes, Manas. Sir, there is a change in medium and refraction. Okay. So in refraction, there are two mediums or two media. Okay. Suppose there is air over here and there is water. So this is the surface separating air and water. But in reflection, what happens? Suppose this is air and this is, let's say, glass. So you are saying in refraction there is change in medium. So ray of light undergoing refraction enters from one transparent medium to another transparent medium. Right? What about reflection? The ray of light striking the surface of a smooth or shiny surface or any kind of surface reflects back or bounces back into the same medium. So this is the major difference. ठीक है, यहाँ पे होता है बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम. यहाँ पे होता है एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम. Okay, so this is the major difference, reflection versus refraction. We are studying refraction now. अभी हमने reflection के ऊपर काफ़ी चीज़ें देख ली already. Now we are focusing on refraction. So let us focus on refraction. अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि refraction जब होता है तो सिर्फ रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है या फिर वो रिफ्लेक्ट भी करती है थोड़ी बहुत? बाउंसिंग बैक भी होता है इसमें? Yes, sir. Yes. So you can say some amount of light is always reflected. रिफ्लेक्शन तो होता ही है इसमें भी, बट मेजर अमाउंट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड. सो रिफ्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का और कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. Suppose you can say 80% of light, 80% of light energy gets refracted, remaining 20% gets reflected. मतलब रिफ्रैक्शन जब होता है ना तो दोनों चीज़ें होती है साइमल्टेनियसली, थोड़ा रिफ्लेक्शन और थोड़ा रिफ्रैक्शन. ठीक है, ओके. अब रिफ्रैक्शन को थोड़ा और डीपली समझेंगे हम लोग. सो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि रिफ्रैक्शन इज एंटरिंग of ray of light from one transparent medium to another transparent medium, exactly होता क्या है रिफ्रैक्शन में? Who can tell me? When it enters from one transparent medium to another, क्या होता है लाइट के रे के साथ? What happens with it? Who can tell me? सब लोग ने वीडियो लेक्चर देखा है, सब लोग ने नोट्स ली है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं ऐसे ही आगे बढ़ने वाला हूँ. डोंट थिंक कि मैं कोई लेक्चर दूंगा यहाँ पे. दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन. सिर्फ प्रियांश का हाथ ऊपर है, बाकी सब सो रहे हैं क्या यहाँ पे? वेरी गुड. कृष्णा, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यस, Sir, the light bends. द लाइट बेंड्स. ओके, ओके, लाइट बेंड्स. द रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और भी होता है क्या?
Yes, Sir, Charul. the Charul, change of please raise speed. your hand. Without raising your hand, I will not allow. Charul. So the light bends towards the normal and the speed changes. Uh, can you repeat because could not hear you. Your voice is very low. Repeat yourself. Yes, sir. Now can you hear me? I can hear you. Okay. So the light bends towards the normal and the speed changes. Okay, okay, all right. So Charul is saying that two things happen when a ray of light enters from one transparent medium to another. One, that it bends. Now, Charul, it bends towards the normal or away from the normal doesn't make any difference as of now. Okay? But it bends. Definitely it bends. Second thing which you said was very important. Its speed changes. Its speed, the ray of light's speed changes. लाइट की स्पीड चेंज होती है. ठीक है. तो रिफ्रैक्शन का जो मतलब है, इट हैज़ अ डुअल मीनिंग. ठीक है. एक अगर चीज़ बोल दोगे तो गलत हो जाएगा. मतलब तुम्हें दोनों चीज़ें बोलनी पड़ेगी रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए. यू हैव टू से बोथ दीज थिंग्स. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बेंडिंग एज वेल एज चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द रे ऑफ लाइट. दोनों चीज़ें साथ में होती है. ठीक है. इसमें जो बेंडिंग है, बेंडिंग ये ऑप्शनल है. तो कंपलसरी क्या है? कंपलसरी क्या है? चेंज ऑफ स्पीड. मतलब रिफ्रैक्शन होता है तो चेंज ऑफ स्पीड कंपलसरी है, होना ही है चेंज ऑफ स्पीड. बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एक सर्टन कंडीशन में ही होगी. ठीक है. सो रिफ्रैक्शन का डुअल मीनिंग है. दोनों चीज़ें होती है रिफ्रैक्शन में, जिसमें एक कंपलसरी है दैट इज चेंज ऑफ स्पीड और दूसरी ऑप्शनल है दैट इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट मतलब रे ऑफ लाइट अपनी पाथ चेंज करती है. ठीक है. रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एज इट passes obliquely from one medium to another. Obliquely. Can anyone explain the meaning of the word obliquely over here? Obliquely का मतलब क्या होता है? Oblique. Sunday morning, sleepy morning. कौशल. Oblique. Obliquely. What do you mean by obliquely? क्या बात कर रहा है यार? स्कूल में चैप्टर हो गया, मेरा वीडियो देख के नोट्स बनाया, ओब्लिक का मतलब नहीं पता? आई एम डिसअपॉइंटेड. प्रिंस. प्रिंस. ओब्लिकली. Yes, sir. ये एक ऐसा Sir, जनरल the वर्ड है. surface between नहीं नहीं ना, नो नो. the नहीं नहीं. अनिकेत बताएगा. अनिकेत, ओब्लिकली. सर जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती. क्या बोल रहे हो? वो तो ओपेक होता है. ओब्लिक और ओपेक दोनों अलग अलग वर्ड्स है. क्या बोल रहे हो तुम लोग? नितिश. एपीजे वालों को टारगेट करूंगा, उनकी एग्जाम आ रही है. गीतिका, लीगली व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ पे लॉ कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी. नितिश, ओब्लिकली का मतलब क्या होता है? जानवी is correct. Kaushal is also correct. Mrinmay, no, wrong. Absolutely wrong. Kanishka, you want to say? Kanishka, I can't hear you. Niharika, you are correct. Very good. Oblique का मतलब होता है slant. In a slanting way. ठीक है. Inclined. Slanting. Yes, Manas, you are correct. Correct. ठीक है.
यस, ओब्लिक का मतलब होता है स्लैंट। जिसने भी आंसर मुझे लिख के भेजा है सब लोग करेक्ट है, ठीक है। ओब्लिक मीन्स स्लैंट। ओब्लिक का मतलब होता है स्लैंट। लिख लो, जिसको भी इसका मीनिंग नहीं पता है प्लीज नोट कर लो। तुम्हारे सामने एक नोटबुक और पेन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मीनिंग है जो तुम्हें नहीं पता होते हैं और तुम कुछ भी फेंकते हो। तो लिख लो, इसको नोट कर लो। ओब्लिक नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पता चल गया ना, और इसको याद रखना है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग तभी होता है जब रे ऑफ लाइट ओब्लिकली एंटर करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ओब्लिक मतलब स्लैंट वे में, ठीक है, तभी होता है रिफ्रैक्शन, तभी बेंडिंग होती है। बेसिकली रिफ्रैक्शन तो होता ही है, बेंडिंग तभी देखने मिलती है। मतलब रिफ्रैक्शन को अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है, नो प्रॉब्लम केशव, रिफ्रैक्शन को तुम्हें अगर ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो रे ऑफ लाइट स्लैंट वे में अगर जाएगी तो तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखेगा, बेंडिंग दिखेगा, ठीक है। ओके, जस्ट लुक एट दिस वन, दिस फिगर। Let me take it here. क्या ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ओब्लिक है? इज दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ओब्लिक? No. नो, इट इज स्ट्रेट, इट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्शन में बताया था मैंने, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये रे ऑफ लाइट ओब्लिकली एंटर नहीं कर रही, ये नॉर्मली एंटर कर रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वही होता है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों को इंसिडेंट है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो रे ऑफ लाइट ओब्लिक नहीं कहलाती। दिस इज नॉट ऑब्लिक रे ऑफ लाइट। और तुम देखो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये वाली रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray. This refracted ray passes straight into the second medium, that is water. Air से ray of light आई straight, water में चली गई straight. Angle of refraction zero. Angle of refraction zero. ठीक है। सो जब भी रे ऑफ लाइट ओब्लिक नहीं होती, ऐसा होता है। अच्छा, इस केस में आई जस्ट वांट टू आस्क, इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Is the refraction happening or not? Who can answer? सब हो रहा है। Oh, okay. Prince says हो रहा है. Very good. Siddhi, what do you say? Siddhi? No, sir. Siddhi is saying नहीं हो रहा है. Let me ask random people. Aditi? Aditi? Refraction हो रहा है कि नहीं हो रहा है? I cannot hear you, Aditi. हो रहा है या नहीं हो रहा है रिफ्रैक्शन? मृण्मयी विल आंसर। मृण्मयी, रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? I guess हो रहा है. आई गेस हो रहा है। ओके, गेस नहीं करना है बेटा, यू शुड नो इट। केशर, इज द रिफ्रैक्शन हैपनिंग और नॉट? हो रहा है. I guess नहीं हो रहा है. I I can't guess. see anything bending here. Okay, okay, okay. But I want you to look at this definition of refraction. It is bending as well as change of speed, in which bending is optional. Bending हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आदिति रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो चेंज ऑफ स्पीड तो कंपलसरी है,
रिफ्रैक्शन मतलब दोनों चीज़ होनी चाहिए, जिसमें से कंपलसरी चेंज ऑफ स्पीड है, बेंडिंग ऑप्शनल है। अथर्व, व्हाई इज योर कैम ऑफ? मुझे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं किसको पूछूंगा? नितिश, रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है, क्यों हो रहा है? टेल मी व्हाई। सर स्पीड चेंज हो रहा है पानी के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा है बिकॉज रे ऑफ लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट नहीं हो रही है। द रे ऑफ लाइट इज नॉट इंसिडेंट ओब्लिकली, इसके लिए बेंड नहीं हो रही है। बट चेंज ऑफ स्पीड तो हो रहा है ना, स्पीड तो चेंज हो रही है, स्पीड इज रिड्यूसिंग, ठीक है, इसके लिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली इट डज नॉट बेंड, बट डेफिनेटली इट स्लोज डाउन। स्लो डाउन तो होगी ना रे ऑफ लाइट, इसलिए रिफ्रैक्शन होगा ही। रिफ्रैक्शन दोनों है, याद रखना, बेंडिंग भी है और स्लोइंग डाउन भी है। स्लोइंग डाउन कंपलसरी होता है, बेंडिंग तभी होता है जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ओब्लिकली, मतलब स्लैंटिंग वे में, ठीक है। अब क्लियर हो गया रिफ्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है? वेरी गुड, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सर जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज भी होती है या इंक्रीज भी होती है? दोनों होती है। लाइट की स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो वो कैसे पता लगा वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई टॉक अबाउट इट। लेट मी फोकस ऑन दिस थिंग ओवर हियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम। प्रियांश, यू वांट टू से समथिंग? तुम्हारे सामने एक डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर शायद तुम्हें मिल जाएंगे इससे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज AO? यस मृण्मयी। Incident rate. Very good. What is O? You can answer. You can answer. No problem. Answer without raising your hand. The point of incidence. Point of incidence. Point of incidence. जिसको ये सब नहीं पता है प्लीज नोट कर लो, ठीक है। What is N dash? Normal. Normal at the point of incidence. Correct. Angle AON. Angle of incidence. Which is angle I, right? Very good, बहुत बढ़िया। OB. Refracted, not reflected but refracted ray, क्योंकि अंदर चली गई ना दूसरे मीडियम में, इसलिए रिफ्रैक्टेड। ओके, एंगल BON डैश कोई बता सकता है? Angle of refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब प्रिंस, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा स्पीड चेंज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई? राइट, कमिंग टू योर क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड। सो ये डायग्राम देख के हमें समझ में आता है कि क्या होता है रे के साथ। whenever ray enters from one medium to another medium and it bends towards the normal, तुम्हें दिख रहा है रे ऑफ लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड हुई है, एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहां जा रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? इज इट विजिबल टू यू प्रिंस? या Yes, sir. whenever a ray of light enters from one medium to another and it bends towards the normal,
याद रखना कि उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक इंडिकेशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इफ यू डोंट नो प्लीज यहाँ पे नोट करो साइड में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। किसी को सी की वैल्यू पता है? 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड? इतनी होती है। एयर और वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, अब क्या होता है, दिस रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग एयर और वाटर को एक स्पेसिफिक नाम दिया है हमने। उनका जो नेचर है ना, इन ट्रीटिंग द रे ऑफ लाइट, इन चेंजिंग द स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट, उनका जो नेचर है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वजह से उनको मैंने नाम दिया है। एयर को हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और वाटर को बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, ये जो रेयरर और डेंसर है ये ऑप्टिकल फिनोमेना है, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। मतलब जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो रेयरर है, जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है वो डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है ना, इतना समझ में आया तुमको रेयरर एंड डेंसर वाला कॉन्सेप्ट? सर तो लास्ट रेयर है ना। ओके, जब भी दूसरी एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जब भी तुम कोई किसी मीडियम के बारे में बात करते हो और तुम्हें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिस्क्राइब करना है कि ये डेंसर है या रेयरर है, यू ऑलवेज कंपेयर इट विद द अदर मीडियम। यहाँ पे दो मीडियम को कंपैरिजन करके फिर हमें डेंसर और रेयरर बताना है। यू कैनॉट टॉक अबाउट वन मीडियम अलोन एंड से दैट दिस इज डेंसर और दिस इज रेयरर, यू कैनॉट। ठीक है, तो जब ग्लास की बात करते हो तो ग्लास से कंपैरिजन कर लो किसी और मीडियम का, सपोज एयर का कंपैरिजन कर लो। ठीक है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर एंड ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ऑलवेज दिस टर्म्स, these optically rarer and denser terms are comparative terms. They do not define, they cannot be stated for a single medium. They are comparative terms. दो मीडियम को एक साथ हमें बात करनी पड़ती है, ऑप्टिकली रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट डायग्राम विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्रैक्शन। कैसे बेंडिंग हुआ, कैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, कौन रेयरर है, कौन डेंसर है। दूसरा डायग्राम ये है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। हु कैन टेल मी the observations? I will make a list of them, all the observations which you observe over here. Number 1, anyone can tell. Sir, the refracted ray is going Away from the opposite to normal. the Away, not opposite, away from the normal. away from the normal. Yes, refracted ray, एक मिनट बेटा, refracted ray bends। अगर कुछ लोगों को तकलीफ है इसमें, बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल लग रहा है, आई एडवाइज देम टू नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग। नोट्स ले लो, सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, नोट्स भी लेनी है, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी। बाद में तुम ही पूछोगे मुझे ये क्या था, ये नहीं समझ में आया मेरे को। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसे वेग क्वेश्चन नहीं पूछना मुझे, नहीं समझ में आया। मैं तुम अगर मुझे पूछोगे नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें सामने 5 क्वेश्चन पूछूंगा, क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि यू कैनॉट से पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बोल सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, इसलिए उनको बोल रहा हूँ, लिखो, नोट लो। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स
away from the normal. That is the first observation. Very nice, Krishna. Second observation, anybody? Sir, change of speed. Okay, you cannot observe that. I just want you to Yeah. give me the observation. वो तो conclusion है. Angle of incidence is greater than angle of refraction. Very good. Angle of incidence is smaller than angle of refraction. Yes, sir. Smaller than. Refraction वाला एंगल बड़ा है. ठीक है, ये दो चीज तुमने ऑब्जर्व की. वेरी गुड. कोई ऑप्टिकली रेयरर डेंसर के बारे में कुछ बताना चाहते हो? क्योंकि इससे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा ना कि कौन ऑप्टिकली डेंसर है, कौन रेयरर है. जिसमें एंगल बड़ा होता है ना वो रेयरर मीडियम होता है, हमेशा याद रखना. Air is the optically rarer. यस, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. एयर इज ऑप्टिकली रेयरर एज कंपेयर टू वाटर विच इज ऑप्टिकली डेंसर. दोनों में अगर कंपैरिजन हो जाए तो एयर रेयरर निकलेगा और वाटर डेंसर. इसीलिए तो एयर में वो एंगल बड़ा हो रहा है. एंड द फाइनल कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन तो हो गए सारे, अब कंक्लूजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कंक्लूजन. जहां पे एंगल बड़ा होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है. मतलब स्पीड Speed ऑफ of light लाइट, is greater than velocity. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, दिस इज योर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन. सो ये सारी चीजें हो रही है. यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग भी हो रहा है, चेंज ऑफ स्पीड भी हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन. किसी को कुछ भी डाउट है बीच में पूछो. अच्छा क्वेश्चन पूछोगे, आई विल बी हैप्पी. इट विल बी ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन इन डिटेल. स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अभी तक सिर्फ अच्छे क्वेश्चन मुझे 2-3 पूछे प्रिंस ने. ठीक है, जो उसके माइंड में वो पूछ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एनीबडी एल्स हैज़ एनी क्वेश्चन, फ्रेम अ क्वेश्चन एंड आस्क इट टू मी. Okay, Priyansh, you are not audible. Your question is in front of me. I have a doubt. Why does not light goes in a random manner inside water as it is also made of particles? Who is made of particles? Light or water? Water. नहीं, I'm asking Priyansh. Okay, Priyansh is saying both are made of particles. Before I explain this to you, मैंने पहले भी लाइट के नेचर के बारे में बात की थी. मैंने लाइट, जैसा आपने बोला था कि डेस्क जो है वो वेव से बनी है और जो लाइट है वो पार्टिकल से बनी है. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपको कि मतलब हाँ, ये तो कैसे हो सकता है, आप मुझे एक्सप्लेन करो. लाइट वेव से भी बनी है और लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी है. ठीक है, और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ना, उससे एक चीज़, एक ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट्स ने उठाया है कि इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. और ये स्ट्रेट पाथ को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं पता है? इसका. ये क्या है पता है? लाइट रे. ये लाइट रे कुछ ऐसे मतलब फिजिकल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए ड्रॉ करते हैं. लाइट रे ये दिखाती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइट का नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ कोर्स. ठीक है, तो बाउंड्री पे ये सिर्फ बेंड करती है. बाउंड्री मतलब द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया. यहाँ पे सिर्फ बेंड होता है, बट स्ट्रेट लाइन में तो बाद में भी ट्रैवल करती रहेगी. सिर्फ मीडियम का चेंज हुआ है. जहाँ पे मीडियम चेंज होगा रे ऑफ लाइट बेंड करेगी, फिर वापस स्ट्रेट हो जाएगी. ठीक है, तो बेंडिंग सिर्फ यहीं पे होता है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ.
एयर टू वाटर, ठीक है। और ये बेंडिंग क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेंडिंग के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ओब्लिक इंसिडेंस और दूसरा चेंज ऑफ स्पीड। ओब्लिक इंसिडेंस और चेंज ऑफ स्पीड। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। Sir, light travels through particles. Light is not particles. Light is made up of particles. Light does not need particles to travel through. Light तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। सन से अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में पार्टिकल है क्या? कौन सा पार्टिकल है सन और अर्थ के बीच में? वैक्यूम है। फिर भी लाइट ट्रैवल करता है। तो लाइट कैन ट्रैवल एनीवेयर, बट लाइट इज सपोज टू बी मेड फ्रॉम पार्टिकल्स विच आर नोन एज फोटोन्स, ठीक है। ये एक थियरी है। और दूसरी थियरी है कि लाइट वेव से बनी है, लाइट में कोई पार्टिकल नहीं होता। यस आप कुछ बोला था, कुछ एक स्पेसिफिक टर्म। फोटोन। फोटोन, यू मीन फोटोन? यस। हाँ, तो जो पार्टिकल है जिससे लाइट बनी है उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है फोटोन। फोटोन, ठीक है। ये फोटोन होते हैं एनर्जी पैकेट्स। प्रोटॉन। फोटोन, ठीक है। इसके ऊपर अगर तुम्हें चाहिए तो और इन्फॉर्मेशन तुम्हें नेट पे मिल जाएगी। आई सेंड यू सम सिंपल वीडियोस, मे बी यू कैन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फोटोन जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उससे लाइट बनी है। दैट इज द पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल देखो क्यों रे ऑफ लाइट बेंड करती है उसका। Just imagine these are the speed breakers. स्पीड ब्रेकर देखा है रोड पे, ठीक है। जब कोई कार स्ट्रेट रोड से स्पीड ब्रेकर पे एंटर करती है तो क्या होता है उसके साथ, पता है तुम्हें? उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। बट कोई कार अगर ऐसे स्लैंट आए तो, ऐसा जनरली हम ऑब्जर्व नहीं करते, बट फिर भी अगर हम ऑब्जर्व करें कि अगर कोई एक कार ऐसे स्लैंट वे में एंटर करे, स्लैंट ऑब्लिकली, तब क्या होगा? डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन भी चेंज होता है। मतलब ये जब एंटर करेगी ना कार, तो मे बी इट विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल एग्जिट लाइक दिस। यू सी देयर इज अ चेंज इन पाथ। ओरिजिनल पाथ ऐसी थी, फिर उसकी पाथ चेंज हो गई, और फिर वो बाहर निकली तभी भी उसकी पाथ चेंज हुई। ये क्यों होता है पता है? बिकॉज ये जो कार है ना, ये पार्टिकल से बनी है। मतलब ये पार्टिकल थियरी है। जब भी कोई मटेरियल या मैटर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, ठीक है, ओब्लिकली, तब उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। उसकी स्पीड भी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। Whenever a ray of light enters from one medium to another medium, why does its speed and direction both changes? Because it is entering obliquely, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ का। अगर तुम्हें इसका एक पिक्चर देखना है तो मेरे पास, आई थिंक तुम्हारे पास अगर एस चांद है तो उसमें भी मिल जाएगा। मेरे पास भी एस चांद है, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। आई हैव इट ऑनलाइन।
see this figure. Can you see this figure on your screen? तुम्हें दिख रहा है कि ये जो लाइट वेव्स है जो पैरेलल है, जब वो लोग एंटर करते हैं तो क्या होता है, तो उनका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा चेंज हो जाता है, एंड देन व्हेन दे एग्जिट अगेन उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है. ठीक है, सो वो जब ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो ऐसा हमें लगता है कि वो बेंड हो गए. ये सारे रेज पैरेलल है, वेव्स, आई एम सॉरी, बीम ऑफ लाइट में, और ये सारे बेंड होते हैं और फिर वापस जब एग्जिट करते हैं तो वापस बेंड होते हैं. सो ये बेंड इसलिए होता है बिकॉज उनकी स्पीड चेंज होती है. सो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इसके ऊपर तुम जितना चाहो उतना डीपर जा सकते हो. प्रियांश, आई थिंक वी आर गेटिंग आउट ऑफ द टॉपिक. ये कोलॉइड टिंडल इफेक्ट, इसमें तो तुम्हें ऑप्टिक्स में पीएचडी करनी पड़ेगी इतना अगर डिटेल में जाना है, एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, सो लेट अस स्टिक टू आवर टॉपिक्स. ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट इट एंडलेसली, देर इज़ नो एंड टू ऑल दिस डिस्कशन, बट व्हाट इज़ द पर्पस, वो पर्पस को हम लोग स्टिक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. Yes, of course, Gauri, one of the reason is also because of different medium. You can speak in between, you can unmute and speak in between, okay? I might not be able to read your comments all the time, so you can speak in between. Gitika is saying rainbow is a result of refraction or reflection. It is both. Rainbow में refraction भी होता है, reflection भी होता है, और ये जो reflection है वो एक specific kind of reflection है, that is total internal reflection. तो रेनबो में दोनों होता है. ओके, लेट अस गो अहेड. ठीक है, सो ये तीनों जो डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स, वो तो क्लियर है तुम्हारे कि whenever a ray of light enters from one medium to another, it bends, but it should enter obliquely. But when it enters normally, it does not bend, only its speed changes. But all three cases are the cases of refraction. Refraction तीनों केस में हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन में बेंडिंग और चेंज ऑफ स्पीड ये दोनों होता है. ठीक है, और एक चीज़ है जो मैंने बताई थी कि whenever a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal because its speed decreases. Because its speed decreases. ठीक है, whenever a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. Away from the normal मतलब angle of refraction ज़्यादा हो जाता है, and that is because its speed increases. When it enters from denser to rarer medium, its speed increases. ठीक है, the next thing which I want to discuss is laws of refraction. तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, और ये थोड़े ज़्यादा टेक्निकल है, थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला लॉ है, इट सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सेम लॉ हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था. यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नहीं थी, रिफ्लेक्टेड रे थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये सारे रेज एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. दैट इज़ वन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज बिट मोर ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट सेज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी, ओके। दोनों एंगल, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, दोनों के साइन ले लिए मैंने अगर, और दोनों का रेशियो निकाला, तो वो क्वांटिटी हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। Sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट्स अ रेशियो, इट इज प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज माई नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे अच्छे से। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग एयर एंड वाटर, ठीक है। एंड लेट्स से दैट this is the normal. Let's imagine that a ray of light is entering obliquely from air to water, so it will bend, right? So definitely refraction हो रहा है। This is the angle of incidence I, this is the angle of refraction R, okay। Now I will calculate sine of angle of incidence. Now what is sine? कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस अटेंड किए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट क्योंकि एपीजे स्कूल ने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी विदाउट टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री, आई एम इंट्रीग्ड टू नो that how did they explain sine without teaching trigonometry? Niharika, do you remember how did they teach sine? So mom told that you will be, or your math teacher will be teaching you science. So did the math teacher taught this topic of sine? No, sir. Then how will you remember this? Like how will you understand? It is मतलब तुम पे छोड़ दिया है वो लोगों ने, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सपोज ABC इज द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर मैं एक एंगल कंसिडर करता हूँ, ये एंगल C, इसको मैं नाम देता हूँ थीटा। थीटा इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। तो साइन is a ratio, sine of theta is a ratio of opposite upon adjacent। थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? AB, और एडजेसेंट में कौन सी साइड है? BC। सो ये जो दो साइड्स का रेशियो है, Upon hypotenuse. ओह आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यस। सो इसके ऑपोजिट में साइड है AB और हाइपोटेनियस है AC। सो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो होता है AB अपॉन AC, दैट विल गिव यू साइन ऑफ दैट एंगल विच इज इनटू कंसिडरेशन। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ दैट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कैसे मिला? सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया विच इज़ परपेंडिकुलर। अब इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज ये है AO और ये है N। तो साइन I कितना हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। I एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? AN, और हाइपोटेनियस क्या है? AO, ठीक है। ये तुम्हें मिलेगा साइन I, यहाँ से तुम्हें मिलेगा साइन I का रेशियो, ठीक है। वैसे ही साइन R का रेशियो भी हम लोग ले सकते हैं। साइन R इज ऑल्सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये ट्राइंगल देखेंगे हम लोग,
ओ बी एन डैश, तो उसमें एंगल आर के ऑपोजिट में कौन सी साइन है, कौन सी साइड है, बी एन डैश। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ओ बी। ठीक है, सो साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे तुम्हें दूसरा एक वैल्यू मिलेगा। अब ये दोनों को अगर हम रेशियो में लिखें, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, सो तुम्हें एक नंबर मिलेगा यहाँ पे। ये जो नंबर है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। सो व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नोट कर लेना प्लीज, is always a unique number for any given pair of media। ये एक यूनिक नंबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज अ यूनिक नंबर। यूनिक मतलब एक कॉमन नंबर होता है हर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। एयर टू वाटर जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक यूनिक नंबर देगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज अ यूनिक नंबर फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर एनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई भी वैल्यू ले लो एंगल ऑफ इंसिडेंस की, उसके रिस्पेक्टिव में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्टिव में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा और उससे जो साइन आई और साइन आर का रेशियो आएगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज अ यूनिक नंबर फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर एनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ angle of incidence and angle of refraction. That is first thing. Second thing, it tells us about the change of speed of light when a ray of light enters from one medium to another। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यूज़ है उसके अगर तुम साइन निकाल के उसका रेशियो निकालोगे तो तुम्हें बताएगा वो रेशियो कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सो ये बहुत सारा थियोरेटिकल नॉलेज है, इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी। सो लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आई थिंक दैट विल बी बेटर। लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। पहले ये लिख लो, इतना सबने लिखा है ये, अगर नहीं लिखा है तो यू विल मिस आउट। Okay, let us take an example.
and understand refractive index. ओके, सपोज रे ऑफ लाइट जा रही है एयर टू ग्लास, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमने मेजर की टू बी, जस्ट लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पे कितनी दी है 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने मेजर किया, वो कितना आया 24 डिग्री। ये मेजर करके हमने कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज़ लिखी है, ठीक है। ये तो हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, एक रे ऑफ लाइट को, लेज़र की जो बीम होती है ना, लेज़र की रे ऑफ लाइट, उसको हम लोग डाल सकते हैं ग्लास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर सकते हैं। ओब्लिकली जब हम डाल रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डाल रहे हैं, और जब वो रिफ्रैक्ट होती है रे ऑफ लाइट, जो बेंड होती है, तो वो कितना एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों हमने मेजर किया है, ये जो 37 डिग्री और 24 डिग्री। डोंट थिंक कि ये कहाँ से मिला सर आपको, ये एक्सपेरिमेंट से मिला, ये समझ लो तुम। दिस वी हैव गॉट इट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट आई विल डू, I will find the ratio of sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, ठीक है। सो साइन 37 अपॉन साइन 24। अब ये जो साइन 37 और साइन 24 ये तुम्हारे कैलकुलेटर में भी निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रेशियो जिसका एक फॉर्मूला होता है, जिसकी एक वैल्यू होती है फिक्स्ड। हर एक एंगल के लिए साइन ऑफ साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ये तुम्हें कैलकुलेटर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगी, तुम्हें ये ढूंढनी नहीं है। तुम्हारे स्कूल में जब एग्जाम होगी तो ये वैल्यूज तुम्हें देंगे वो लोग, दे विल गिव यू विद द क्वेश्चन। सो डोंट वरी कि मेरे को तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू, यू विल नॉट फाइंड द वैल्यू, they will give you the value. See, we will find that the value of sin 37 is 0.60 and sin 24 is 0.40. तो वो लोग तुम्हें क्वेश्चन में देंगे, they will give you in the question कि sin 37 कितना है, sin 24 कितना है। तो 0.60 and 0.24 0.40, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.60 and 0.40। ये दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई, क्वेश्चन में ही दी थी, विच इज़ 6/4
which is 3/2, which is 1.5. So now what is this 1.5? This 1.5 is a constant. Refractive index is 1.5. लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का. क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर एंटर कर रही है. अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑलवेज यू हैव टू से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट आ रही है एयर से, तो तुम यहां पे लिखोगे एयर. ए म्यू जी, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इट इज नॉट यू, इट इज अ ग्रीक लेटर म्यू, MEW, म्यू ग्रीक लेटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ये. मतलब जब रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में एयर से ग्लास में आती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ग्लास का 1.5. इसका मतलब क्या है पता है? व्हेन, इसको लिख लेना प्लीज, अ रे ऑफ लाइट enters from air to glass, its speed, decreases by 1.5 times. very good, reduces by 1.5 times its original value. ये है मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कितनी रिड्यूस होगी, बाय हाउ मेनी टाइम्स विल द स्पीड रिड्यूस. ठीक है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. रिड्यूस वर्ड थोड़ा सा गलत है, चेंज अगर हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा है. चेंज बोले तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होती है, हाउ मच डज द स्पीड ऑफ दैट रे ऑफ लाइट चेंज, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो अकेला अगर तुम म्यू लिखोगे तो गलत हो जाएगा. म्यू के लेफ्ट में जो सिंबल है, छोटा सिंबल, वो बताता है रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. और म्यू के राइट में नीचे जो छोटा लेटर है वो हमें बताता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है, इन विच मीडियम इट इज एंटरिंग. सो द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास. ठीक है, और भी कुछ छोटी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा तुमसे. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ AW, म्यू AW, इसका मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग बताएगा इसका? The ray of light is The ray of light is entering from air to water, correct? The ray of light is entering from air to... refractive index of water with respect to air. Very good. This is the refractive index of water with respect to air. अगर तुम इसको फाइंड आउट करते हो, जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. एंड व्हाट विल इट टेल अस? ये हमें क्या बताएगा? ये हमें क्या बताएगा? What will it tell us? It will tell us that by how much times? speed of light will decrease when it enters from air to water. Very good. By how much time the speed of light change, मैं decrease नहीं बोलूँगा, मैं change बोलूँगा. ठीक है? By how much time speed of light will changes when it enters from air to water. This is what... 1.33. Yeah, you are right. 1.33, that is the value. But ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हमें ये बताता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है. फिर ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू whom, एंड
जब इसका वैल्यूज जो होगा वो हमें ये बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन सर्टन मीडियम टू अनदर मीडियम. दैट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या 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 पता चलता है इससे? वाटर टू ग्लास, रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. yes, this is the refractive index of glass with respect to water. और हमें क्या पता चलेगा इससे कि जब रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में जाती है तो हाउ मच टाइम्स डज इट स्पीड चेंज, कितना टाइम्स उसका स्पीड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या चेंज होगा. ये सब हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया वो सबका दिमाग खराब कर दिया उसने. साइन वाइन क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, हमको तो पता भी नहीं है. हमको नहीं ये पढ़ना है ये फॉर्मूला, हमको दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है. ठीक है. सो आई टेल यू द अनदर फॉर्मूला विच इज़ मोर ईजियर टू रिमेंबर एंड मोर ईजियर टू अप्लाई. व्हाट इज दिस साइन एंड दिस एंड दैट, हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, हमको नहीं पता ये. ठीक है. यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू विथ योर टीचर एंड दैट्स वाई देर इज अनदर फॉर्मूला which is much more relatable. So let me give you another formula of refractive index. ठीक है. refractive index का जो फॉर्मूला है that is, suppose मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ. 1 और 2 का मतलब है रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. ठीक है. मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सीधा स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है ये. दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा ज्यादा इजी हो गया, साइन आई साइन आर से ज्यादा इजी और रिलेटेबल फॉर्मूला है ये. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ज्यादा understandable formula. Let's take an example, guys. Let's take an example. Refractive index of glass with respect to air. जब ray of light glass में जा रही है, air से, air to glass ray of light जा रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? Speed of light in air upon speed of light in glass. ये जो speed of light in air है ना, उसको हम लोग symbol देते हैं c. Speed of light in air और vacuum is given the symbol c. And speed of light in glass is Vg. Speed of light in glass is Vg. C क्या होता है? Speed of light in air क्या होता है? 3 times 10 to the power 8. Speed of light in glass मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता है तो. It is 2 times 10 to the power 8. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देखो डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमने पहले ढूंढा था, फिर से मैं वही ढूंढने वाला हूँ. मीटर पर सेकेंड कट हो जाएगा, 10 to the power 8 कट हो जाएगा, 3/2 देगा हमें 1.5. यू रिमेंबर हमने यही चीज़ वो साइन आई साइन आर से निकाला था. कहाँ पे? यहाँ पे. यू सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. oops, oh my god, there's a huge tree fell down और पूरा दीवार गिर गया मेरे सामने. जस्ट नाउ एक्सीडेंट. सामने क्या पूरा दीवार गिर गया. देख ट्री गिर गया बहुत बड़ा, पूरा दीवार गिर गया. जोर से आवाज है. उसका काम क्या पता, ट्री गिरा है दीवार गिरा, आई डोंट नो. दो ट्री गिरे ना एक साथ, दो ट्री कैसे गिरेंगे? ट्री क्या है? ट्री नहीं सारे ट्री गिर गए ना, जितने थे रास्ते. दीवार गिरा तो दीवार गिरा. सच में बात तो सोचो. मेरा क्लास चल. मेरे उसके लिखने बहुत है. क्यों? क्या पता मेरा तो जब भी कितने दिन से ला All right. So just see here.
I just told you about the refractive index of glass with the complicated method of sin I and sin R. That is the actual method. ये हमारा एक्सपेरिमेंटेटिव मेथड है, बट इसका एक दूसरा जो मेथड है वो मैंने अभी तुम्हें बताया, दैट इज दिस मेथड. स्पीड ऑफ लाइट से भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन आई अपॉन साइन आर और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट वाला. ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए. ठीक है, सो मैं तुम्हें फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख के देता हूँ यहाँ पे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है, रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, and it is also equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. तो ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें लर्न करने हैं. इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे. ठीक है, ओके. अब एक नया छोटा सा नया कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is calculated always with respect to air or vacuum. So मतलब when a ray of light travels from vacuum or air to a medium, when a ray of light travels from vacuum or air to a medium, we get absolute refractive index of that medium. ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि absolute refractive index is always equal to refractive index of a medium with respect to air or vacuum. ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट मोमेंट, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम जब हम निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल है म्यू एम. इसके आगे हम कुछ नहीं लिखते, ए लिखते नहीं हम लोग, क्योंकि वो एयर से ही जा रही है रे ऑफ लाइट, ये हम कंसिडर कर लेते हैं. म्यू एम, दैट्स इट. ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नंबर 1 ग्लास. यस, किसने बोला? म्यू जी. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. म्यू जी का फॉर्मूला बता दो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में. ये भी इजी है, कम ऑन. स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में पता है ना हमें फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में फॉर्मूला क्या है? 10⁸ मीटर. नहीं, फॉर्मूला बताना है, वैल्यू नहीं बतानी है. फॉर्मूला C/Vg. C/Vg मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिंबल बताओ जल्दी, सिंबल बताओ. म्यू डब्ल्यू. फॉर्मूला बताओ. C/VW, speed of light in air upon speed of light in water. Absolute refractive index of diamond
म्यू डी, करेक्ट। फॉर्मूला बताओ। C upon वी डी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी भी मीडियम के लिए जब हम ढूंढते हैं तो दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऑलवेज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताऊंगा। इफ यू वांट टू फाइंड refractive index of glass with respect to water, can you tell me the formula of can you tell me the formula in terms of speed of light? refractive index of glass with respect to water, ये तो absolute refractive index नहीं है, ग्लास में रे ऑफ लाइट आ रही है वाटर से, इसका फॉर्मूला बता सकता है कोई? वेरी गुड, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, एक्सेलेंट गाइस, ओके नाइस। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको मैं देखो अलग तरीके से डिवाइड करता हूँ, डिराइव करता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला को प्लीज याद रखना, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको देखो डिराइव कैसे करता हूँ। सो अगर मैं लिखूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मैं बोलता हूं अभी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का फॉर्मूला क्या है? सी बाय वी जी। म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी बाय वी डब्ल्यू। ठीक है, इसको देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई करके बनाता हूं आंसर। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। See this, this is very interesting. This will become C by Vg divided by C by Vw. That is C by Vg times Vw by C. That is Vw by Vg because C तो cancel हो जाएगा। Do you see the same formula here? Yeah, exactly. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब दो अलग अलग मीडियम जिसमें एयर नहीं है, एक्सेप्ट एयर, अगर कोई दो दूसरे मीडियम हैं तो उनका आपस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हम डिराइव कर सकते हैं। दैट एग्जिस्ट्स, दैट इज सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल। अच्छा, can anyone tell me what will be refractive index of medium 1 with respect to medium 2? म्यू 1 बाय म्यू 2, वेरी गुड। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों को कंपेयर करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके बोल सकता हूं कि म्यू 1 2 टाइम्स म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 टाइम्स म्यू 1 बाय म्यू 2। सही है कि नहीं? दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन 1 और 2 को, अच्छा ये तो कट जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट यू गेट? म्यू 1 2 टाइम्स म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1। इज इट करेक्ट? अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 1?
वाओ, और एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में अगर चेंज कर दो तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। तो इससे मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मतलब पूछने वाला हूँ। प्लीज़, बहुत लोगों के दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे शायद, थोड़ा सा ध्यान से सोचो समझो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वी आर नॉट लीविंग अ सिंगल आयोटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनएक्सप्लेन्ड, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और एक ही चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। यस अंशुल, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके दिखाओ। मैं दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। पहले मेरे को ख़त्म करने दो, पूरा दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ख़त्म करने दो, ये कंटिन्यूटी बनी है यहाँ पे, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सपोज मुझे ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और मुझे ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब तुम बोलोगे सर साइन आई साइन आर कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कैसे मिलेगा ये? मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में है दैट इज़ 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में है, किसी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होता है? 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें सिर्फ ये दोनों चीज़ें पता है, इससे हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले आई विल जस्ट फाइंड दिस थिंग दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। सो मैं फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है किसी को? नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हम निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज C/Vg। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज C/Vw। देखो सारे कॉन्सेप्ट लाइन में आ रहे हैं, अभी सब कुछ लाइन में आ रहा है। अब देखो C कट हो जाएगा, VW/Vg बन जाएगा। ये VWVG तो है हमारे पास, 2.25 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। 10⁸ कट 2.25/2 दैट इज 225/200। 25 के टेबल में जाएगा, 9/8 आंसर आएगा। सो 9/8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आर यू शॉक्ड? वी गॉट द आंसर। अच्छा अब देखो, अब ये ढूंढने के लिए तुम्हें कोई पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला था ना उसको अप्लाई करना है, रेसिप्रोकल। सो आई नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विच इज 1/9/8, विच इज 8/8। खत्म, you are done. So 2 very difficult looking questions solved with the help of relations between speed of light and absolute refractive index very easily. ठीक है, कहीं भी मैंने साइन आई साइन आर का यूज किया क्या? नहीं किया। मुझे किस चीज की जरूरत है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, बस ये अगर मुझे पता है ना तो मेरे सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। एंड डोंट वरी, ये मत सोचना कि अभी भी ये डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एग्जाम में, मुझे नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है। वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एज वेल, ठीक है। अब मैं पूरा रिवीजन देता हूँ तुमको। देखो ये जिसको भी पूरा चैप्टर आ रहा है ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इफ़ आई जस्ट टारगेट योर यूनिट टेस्ट एंड जस्ट ऊपर से तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आगे तुम जब 11th-12th में साइंस लोगे, फिर से तुम्हें ये चीज़ डराएगी, तो मुझे चाहिए कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कोर से क्लियर हो, सिर्फ ऊपर से नहीं। तो मेरी स्पीड मैं खुद डिसाइड करूँगा, ठीक है। वेदर और नॉट इट इज़ कंप्लीटेड बिफोर योर एग्जाम्स, आई डोंट केयर अबाउट इट।
आई केयर अबाउट वेदर और नॉट यू अंडरस्टैंड दिस. सो इसको समझो. प्लीज़ डोंट थिंक कि नहीं ये जल्दी जल्दी ख़त्म करो, इतना डिटेल में क्या ज़रूरत है. अगर डिटेल में नहीं जाएंगे ये कुछ भी नहीं समझेगा तुम्हें. सो अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल रिविजन एंड एंड दिस क्लास टुडे. ओके. सो जिसने भी नहीं लिखा है, अंशुल या किसी को नोट करना है, तुम अभी नोट कर सकते हो. मैं फिर से शुरुआत से दिखाने वाला हूँ. ठीक है. कुछ भी चीज़ नोट करना अगर रह गया है तो नोट कर लेना. ओके. चलो, लेट अस गो बैक टू द स्टार्टिंग. ओके. तो मैंने तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का शुरुआत में मीनिंग बताया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स. दो मीडियम की ज़रूरत होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो उसको हम लोग लिखते हैं μ12. ये μ12 मतलब हम किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं. वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ठीक है. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है. साइन आई अपॉन साइन आर. इसका और एक फॉर्मूला है v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. यहीं से पूरी स्टोरी शुरू हुई थी. साइन आई साइन आर को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था अलग से. ओके. फिर मैंने तुम्हें बताया मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रे ऑफ लाइट हमेशा एयर से जाएगी. एयर से किसी मीडियम में जाएगी. मतलब द फर्स्ट मीडियम इज एयर, द सेकेंड मीडियम कैन बी एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. It can be water, it can be glass, it can be diamond, it can be oil, it can be turpentine, any other transparent medium. बट फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा. वैक्यूम या तो एयर. हमेशा याद रखना, वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है. और एक एग्जांपल देता हूँ मैं अगर तुम्हें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1 होता है. 1. ठीक है. एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि एयर से, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ. एयर से एयर में या वैक्यूम से वैक्यूम में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती. इसलिए एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है. 1. बाकी सबके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इससे ज़्यादा होते हैं. सो द लीस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज 1. The least refractive index is 1 which is for air और वैक्यूम. ठीक है. ये मैंने बताया तुम्हें. इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा याद रखना कि पहला मीडियम एयर होगा और एयर से ये रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी. तो म्यू एम इसका सिंबल. ठीक है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μg, absolute refractive index of water μw, absolute refractive index of diamond μd. अच्छा, फॉर्मूला साइन आई साइन आर को हम साइड में रखते हैं. स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमें मिल चुका है. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विच इज c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज ग्लास. c/vg, c/vw, c/vd. ये तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला. फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है हमारे पास और हमें कोई मीडियम है अपार्ट फ्रॉम एयर, कोई दो दूसरे मीडियम है, ग्लास और वाटर या ग्लास और डायमंड या वाटर और ग्लास, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है. तो हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो ये हमने डिराइव करके दिखाया. कैसे. यहाँ पे मैंने लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. इसको मैं सिंप्लीफाई करता गया और मुझे मिला speed of light in water upon speed of light in glass. So this is extremely important formula जिससे हम किसी भी दो
मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वन और अनदर. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू. इससे मुझे एक दूसरा फॉर्मूला मिला कि मीडियम 1 और 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 और 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है. दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है. एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है व्हेन यू चेंज द मीडियम. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 को साथ में देखोगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो. इसका एक एग्जांपल मैंने ग्लास और वाटर के साथ समझाया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8 and the refractive index of water with respect to glass is 8/9. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल. ठीक है, सब कुछ लिख लिया सबने? कुछ बाकी है, कुछ बचा है? Anybody wants to ask any question because this is everything about refractive index. Anyone wants to ask anything? किसी को कुछ पूछना है? Okay, Geetika is asking, can we say that higher the refractive index of a substance, more it will change the direction of light passing through it? Yes, absolutely. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा. मोर बेंडिंग, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर बेंडिंग. यस, यू आर राइट. मोर बेंडिंग तभी होता है जब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा चेंज होती है. व्हेन देर इज़ मोर चेंज ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, देर इज़ मोर बेंडिंग and that means more refractive index. पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब और ये सब कुछ हम लोग करेंगे, बट आज नहीं. आज हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. या दिस इज़ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. यहाँ से आगे या कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी है ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद फिर लेंसेज स्टार्ट करेंगे. ठीक है? सो इनफ फॉर टुडे. Principle of reversibility come in exam? I'm not sure you have it in your book. I'm not sure. Let me check whether you have it or not. यहाँ पे तो नहीं है, पीछे होगा शायद. रुको मैं चेक करता हूँ एक बार. Because it is for ICSE. No, you don't have it. Principle of reversibility you don't have. But principle of reversibility को समझना है. So try to understand. One second. This is principle of reversibility. ये जो है ना, बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो. Then I think we are done for today. I'll give you some homework based on this. Let me gather the homework because मेरे पास separate homework नहीं है, but है मेरे पास कुछ तो homework है, तो ये मैं तुम्हें provide करूँगा इस week. मतलब आज ही provide करूँगा. Next week हमें magnetic effect of electric current ख़त्म करना है. मतलब उसका एक ही पार्ट बचा है जो मोटर प्रिंसिपल. एंड आई वांट टू फिनिश वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये मेरा वेडनेसडे थर्सडे का प्लान. ठीक है, तो ये दोनों करेंगे, फिर नेक्स्ट वीकेंड वापस लाइट कंटिन्यू करेंगे.
दैट इज़ आवर प्लान. ओके गाइस, और सर एपी के वीडियोस देख के रेडी रहना है. वो मैंने भेजे थे राइट. हाँ मतलब सर हमें नोट बना के मतलब यस यस, यू हैव टू फिनिश इट फ्रॉम योर एंड. लाइव लेक्चर में मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ उसके बाद फिर वो उसका नंबर आएगा, तो तब तक तुम्हें अपने तरफ से रेडी रहना है, अगर वो तुम्हारी एग्ज़ाम में आ रहा है तो. ठीक है, नहीं आ रहा है तो देन यू कैन डू इट विथ मी, नो प्रॉब्लम. बट आ रहा है अगर, तो प्लीज़ उसको ख़त्म कर दो पहले ही. ओके ठीक है, चलो बाय, सी यू लेटर.